So, hello Shivani ji, and welcome to Cinespeaks. Hi, thank you so much. How are you? And you're looking fabulous. Oh, really? Thank you so much. Thank you. So, how are you? How's the lockdown? I'm fine, and the lockdown has been very keeping me very busy Yeah, because I'm trying to help people in my own way by doing some motivational concerts, virtual concerts, of course. I just came out with a song called Tufano Se with Kailash Kher and Sudesh Bhojpuri. It's a tribute to the Corona warriors. yeah. Um, Before this, of course, I was very busy promoting Jogia, my Punjabi song, That's and beautiful. I've also been trying to, help and support lots of charities and Yeah. NGOs, lots to help, the COVID patients and the migrant workers and their families to feed them and all of that. So there's been a lot which has been happening on the humanitarian ground as well. So, Tufano Se, let's talk about that. As you said, it's a beautiful song and a tribute to frontline workers. तो आप on board कैसे आई इस song के लिए? वैसे तो आप actively involved रहते ही हैं COVID relief funds and concerts में, जैसा कि सबको पता है. तो it might have Thank you so much. Thank you so much for the compliment. Tufano Se is an initiative of the Government of India and the Ministry of Minority Ministry. And so basically, I have been associated with them in a lot of events. These events are called Hunar Haat. So Hunar Haat is a very nice initiative taken by the Ministry of Minority Affairs to basically give a platform to all the artisans and craftsmen from all over the country who don't find a platform to showcase their handicrafts and the work of art. So जब लॉकडाउन थोड़ा खुल गया था और चीजें काफी मतलब नॉर्मलसी पे आ गई थी, तो ये बहुत सारे जगह जगह इवेंट्स हुए थे, जैसे दिल्ली में, रामपुर में, लखनऊ में, गोवा में, बैंगलोर, मैसूर, एवरीवेयर. So I was a part of the artist brigade, which would actually go there and perform live, which was basically the culmination of this mela with a cultural evening. So I used to perform there, and मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहां पे इतनी सेफ्टी और इतनी प्रिकॉशन से लोग आते थे. सब लोग मास्क पहनते थे, टेम्परेचर चेक्स होते थे वहां पे वगैरह वगैरह. एंड दीज आर्टिसंस वर गिवन अ लाइवलीहुड. yeah. So, which I think is a fantastic thing because, in artisans, because of COVID, because of the lockdown and pandemic, uh, uh, I think 1.5-2 साल से कहीं भी कोई उनकी इनकम नहीं थी. So इनके स्टॉल जो उनको फ्री में दिए जाते थे गवर्नमेंट से, so they were given a free stall by the government and promotions कि आप अपने wares बेचिए. So and trust me, कम से कम वहां पे फुटफॉल बहुत सारी थी, मतलब 50-60,000 people would actually be visiting these the melas for at least a period of a week or so. So I think इनकी इनकम काफी इनके लिए बहुत अच्छा रहा. It was wonderful for them. So हुनर हाट ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि let's do something for the COVID warriors, and they selected 3 artists. And I was very fortunate and very blessed and very honored to be one of the 3 artists to be selected to be the voice and the face of this song. And आपसे बेटर so कोई हो भी that's नहीं how सकता. it happened. जी आपसे sorry, बेटर I didn't. आपसे बेटर इस सॉन्ग के लिए कोई हो भी नहीं सकता था. यू आर सो इन्वॉल्वड इन कोविड रिलीफ फंड एंड वर्चुअल कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग. Like, Thank you so much. Thank you so much. Yes, it really warms my heart because I think हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. Doing something for others really is a much more fulfilling feeling than something that happens only for you. So I think इस uh, इस पैंडेमिक दौरान में मैंने बहुत अच्छी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज देखी हैं अपनी आंखों से, जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत 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 हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को. तो या एक तरफ आप है जो हेल्प कर रही है, बट एक टाइम पे ये था जब काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मतलब सारे काफी जो वेकेशंस एंड ऑल की फोटोज पोस्ट कर रहे थे, एंड थोड़ा इनसेंसिटिविटी का लाइक मिला था, उनको भी बैकलैश मिला था. बट आप जो थी काफी फंड्स अपने इकट्ठा कर रही थी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एंड अपने वर्चुअल कॉन्सर्ट्स कर रही थी. तो आपका क्या कहना था, मतलब वो जो बॉलीवुड सेलेब्स अपनी फोटोज वगैरह पोस्ट करे जा रहे थे बाहर? हाँ, वो ऐसे बहुत ही मुझे लगा, बहुत अजीब लगा. इनफैक्ट आई थिंक दे ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर इट. आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से सोचा होगा कि लेट्स एस्केप
to a place like a Maldives or Dubai or somewhere, and then let's show very good social media traction, because आजकल लोग सिर्फ वो ही देखे जा रहे हैं, gloomy pictures देख रहे हैं, जहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स या पेशेंट्स की पिक्चर्स या फिर इंजेक्शन या वैक्सीन की पिक्चर्स. तो आई थिंक इन अ वे इट इज अ बिट इनसेंसिटिव. आप अपने हॉलिडे पे गए हैं, आप जाइए, एंजॉय कीजिए आप, बट आप फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हैं दुनिया में, जब इतनी ये महामारी का इतना ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ गया कि इतनी जाने गई हैं इस वक्त. इट वाज सच अ सैड एंड ट्रेजिक, इतना ट्रेजेडी रही है इस बार. इतने ज्यादा लोग, आई वुड से people have died, people have passed away. So I think इस समय ये जो समय था, इसमें आप हॉलीडेज की पिक्चर या वर्कआउट की पिक्चर दिखाते हुए, I don't think it really made sense. But बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे सोनू सूद का नाम सबसे पहले आता है. I'm very very inspired by him and what he's doing, what all he's doing. तो people like him, people like my friend Mika Singh, जो इतने अच्छे सिंगर हैं, फेमस सिंगर, उन्होंने डेली लंगर किए हैं, अपने डिवाइन मिशन के साथ. तो मैं ये एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ बिकॉज जब आपके पास एक कैपेसिटी है कि आप कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हॉलीडेज तो होती रहेंगी ना, आप हॉलीडेज करके भी आए हैं, पार्टीज भी करके आए हैं, सब कुछ करके आए, लेकिन आप वक्त है फॉर यू टू डू समथिंग फॉर दोस पीपल, क्योंकि आप इस वक्त सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं. तो आई रियली विश कि मैं भी सोनू सूद की तरह बहुत कुछ कर पाऊं, बट जितनी मेरी कैपेसिटी मैं में करना चाहती हूँ, मैं जरूर करूंगी और करती ही रहूंगी. इनफैक्ट मेरे रोज एक डेली रूटीन बन जाती है, स्केड्यूल बन जाता है कि आज यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे वेबिनार है, यहाँ पे वो है, मतलब वर्चुअल कॉन्सर्ट है, ताकि लोग वेबिनार्स एंड ऑल आते रहते हैं. जी, इनफैक्ट yesterday I was on a very very nice webinar. It was about holistic healing by the Sattva Nation, जिसमें बहुत से लोग जुड़े थे जो मेंटल मतलब डिप्रेशन की वजह से उस पे जुड़ गए थे कि हाँ, और बहुत सारे सवालात कर रहे थे कि हम कैसे कर सकते हैं. तो मैंने, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सम डॉक्टर, बट आई सेड कि देखो, म्यूजिक में बहुत हीलिंग पावर्स हैं. Exactly. तो अगर आप म्यूजिक को अपना बहुत ही अहम हिस्सा बना लीजिए अपनी जिंदगी का, जैसे मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि आप अपने दिन की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत स्पिरिचुअल चांट्स, मंत्रास, मेडिटेशन से कीजिए. वो जो म्यूजिक है वो बहुत उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पूरे माइंड और बॉडी को हील करेंगे. योगा को अपना वे ऑफ लाइफ बना दीजिए. योगा राइट नाउ बट आई थिंक forever. मतलब I have been doing yoga for the past 20 years and it is truly helping. अब मुझे समझ में आ रहा है कि योगा की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, and it has really helped me, क्योंकि योगा में जो प्राणायाम है वो एक गुड मंत्र है, वो it's the best thing ever. वो जो प्राणायाम है उससे जो ऑक्सीजन लेवल आप अपने आप के मतलब कायम रख सकते हैं, या उसको बिल्कुल टॉप लेवल तक रख सकते हैं, अपनी स्टैमिना को बढ़ा के रख सकते हैं, अपनी लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो योगा में बहुत क्वालिटीज हैं विच आई थिंक अब एवरीबडी, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया भर जो है वो योगा की तरफ करेंगे, कंट्रीब्यूट कर पा रही है अपनी तरफ से. आपका रूटीन बना हुआ है एंड आप अपना मेंटल पीस रख पा रही है इन सब के. जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि देखो, म्यूजिक मेरी लाइफ का इतना अहम हिस्सा है. म्यूजिक इज माय लाइफ. तो म्यूजिक से बहुत हीलिंग, बहुत थेरेपी मिल सकती है, मेंटली भी. एंड आई थिंक जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो है, अगर आप उसको चांट करें या आप उसको सुने, तो मेरे ख्याल से जो कोविड पेशेंट्स भी हैं, जो मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं बिकॉज ऑफ कोविड, इट वुड हील देम, बिकॉज उस मंत्रा में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है दैट आई कैन हेल्प यू. Sometimes alternate therapies help more, that's what I feel. That yes, of course medicine is very important, but alternate therapy को भी अगर आप ऐड करें अपनी रूटीन में, तो उससे बहुत आपको हेल्प मिल सकती है, बहुत सहायता मिल सकती है. एंड तूफान ओसे की जो शूटिंग थी आपने घर पे की थी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लाइक कैलाश जी, आप सुदेश भोसले जी. जी बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम का एग्जाम्पल हमने सेट किया है कि देखिए, हमने घर पे ही, कैलाश जी का भी अपना स्टूडियो है, आई एम श्योर सुदेश जी का भी अपना स्टूडियो है, और मैंने भी अपने घर पे एक सेटअप रखा हुआ है. तो उसी सेटअप से अपना खुद का माइक, लैपटॉप, ये वो सब कुछ आजकल हर आर्टिस्ट के पास, हर सिंगिंग आर्टिस्ट, हर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हर एंकर, हर प्रेजेंटर के पास अपने घर पे
सेटअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वक्त ही कुछ ऐसा है, क्योंकि आप अगर अपने घर से बाहर नहीं जा सकते तो आपका काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। वो तो और बात। हमारा काम तो देखो म्यूजिक का काम है, आप प्रेजेंटर हैं, हाँ तो जी। आपका काम भी नहीं होना चाहिए, आपके पास भी अच्छा वाईफाई सेटअप, क्या अच्छा अच्छा कैमरा वगैरह सब हो, तो आप योर वर्क, जैसे कहते हैं ना, मतलब द शो मस्ट गो ऑन। क्या शो मस्ट गो ऑन। तो रिकॉर्डिंग घर पे ही करी, और फिर उसके बाद जो शूटिंग थी, मेरे हस्बैंड ने अपने आईफोन से हाँ जी। करके हमारे गार्डन में शूटिंग करी। तो या बस इतनी सुरक्षित तरीके से हमने काम किया। बट दैट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रही है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीती थी इंटरनेशनल। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, मतलब इंटरनेशनली आप इंडिया को प्राउड करती आ रही है। तो व्हाट वाज थैंक इट लाइक विनिंग दैट ट्रॉफी? यू सो मच। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ अवार्ड्स, मुझे लगता है कि मैं कभी अवार्ड्स कभी पीछे नहीं भागी हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे अवार्ड्स जो होते हैं जहाँ पे बहुत ही मेरिटोरियस तरीके से एनालाइज करके आर्टिस्ट को जब रिकग्निशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि कॉल आती है, ईमेल आती है कि हमने आपको सिलेक्ट किया है, वी हैव क्योंकि आपने नॉमिनेटेड यू इंडिया फॉर को दिस। रिप्रेजेंट किया, आप अपने साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जी बिल्कुल। तो मुझे शुरुआत से ये बहुत अच्छी फीलिंग लगती है कि जब मैं एक ग्लोबल लेवल पर जानी जाऊं या फिर पहचानी जाऊं आप है और ग्लोबल। सराही जाऊं, तो जी, so this is a global recognition which, so I'm really humbled, I'm very overwhelmed and very thankful to GFMF, which is Global Film and Music Festival, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स इंटरनेशनली करे हैं, मैंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करे हैं। इनफैक्ट 2018 में मैं न्यूयॉर्क इंडिया डे परेड में परफॉर्म करने गई थी to वाओ। celebrate the Indian Independence Day celebrations. Along with me was Kailash Kher ji, Shruti Hassan and Kamal Hassan ji. हम लोग 4 इंडियन सिलेक्ट हुए थे यहाँ से, इंडिया से। इनफैक्ट अनुपम खेर जी भी थे। तो हम 5 थे, इनफैक्ट 5 गेस्ट ऑफ ऑनर हैड बीन सिलेक्टेड। वो हर साल 4 या 5 गेस्ट ऑफ ऑनर को सिलेक्ट करते हैं, एंड एक जो होते हैं वो ग्रैंड मार्शल होते हैं, who leads the bandwagon, and that time it was Kamal Hassan ji who was a grand marshal. तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ये 4-5 गेस्ट ऑफ ऑनर को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन we go there and we talk about our country, and we meet the American politicians and leaders, political leaders, और वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को इंडियन ट्राई कलर फ्लैग की में लाइट करते हैं पूरे हफ्ते to honor our country. It is a completely a very proud moment, and then performing for 1 lakh plus Indians out there at the Madison Square Garden. So I think that was quite a global activity for me, because when you represent your country abroad, that is something which I feel जो मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट वही रहती है। तो आई गेस ऐसे कुछ मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस करे हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो द इन पैनल आर्टिस्ट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, व्हिच इज ICCR। तो वो हर 2 साल में मुझे different countries में भेजते हैं to represent India in a festival where I perform our Indian cultural music, and since I am a Bollywood singer, तो वहाँ पे तो Bollywood सब लोग पूरे वर्ल्ड वो इतना पसंद करते हैं। So it's wonderful to be representing your country. एंड अभी जो रियलिटी शोज आ रहे हैं, आपने खुद भी जज किए हुए रियलिटी शोज। आजकल जो रियलिटी शोज है उस पे लोगों का भी ये कहना है कि टैलेंट से फोकस हटके कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ पे ज्यादा हो रहा है, एंड उस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, उनके बैकग्राउंड पे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे ये ज्यादा फोकस हो रहा है। जो उनका मेन फोकस होता था रियलिटी शोज का, टैलेंट, बेसिकली सबसे बेस्ट टैलेंट को लाना, वो हट रहा है। सो आपने जो जज किया, आपने भी ये देखा हुआ है, या फिर ये इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? So I think the trends keep changing. आपको तो पता ही होगा कि व्यूअरशिप और TRPs लाना कितना टफ होता है। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ब्लेम करा जा सकता है इसके लिए, बिकॉज ऑडियंस ऑल्सो समटाइम्स फाइंड्स इट वेरी बोरिंग टू जस्ट वॉच ओनली टैलेंट। सो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने तो इनफैक्ट रियलिटी शोज देखने बंद कर दिए हैं, बिकॉज आई फाइंड, एज यू सेड, आई फाउंड टू मच ड्रामा एंड लेस on the art, less on the craft and more on the drama out there. रोना धोना ये वो, मतलब थोड़ा बहुत बैक स्टोरी वगैरह अच्छी होती है, बट आई थिंक दिस इज हैपनिंग not just in India, but I think it's happening internationally also. But internationally, जो मैंने कुछ when I get to watch
America's Got Talent or something, you know, something of that. तो वहाँ जो वो परफॉर्म करते हैं ना, वो इक्वली अमेजिंग होता है. मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी, उनके जो परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, वो एक से बढ़कर एक, बहुत ज्यादा तैयारी होती है, बहुत ही पॉलिश्ड होती है. यहाँ पे भी कुछ परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट आई थिंक जो टाइम लिया जाता है वो उसमें बहुत ज्यादा, टू मच ऑफ द ड्रामा एंड इमोशनल this thing, so which I feel that sometimes it takes away from the real basis of the show. What is the real premise of the show, उससे हम थोड़ा हट जाते हैं. बट देखिए चैनल को ज्यादा पता होता है, बिकॉज वो पूरा सर्वे करते हैं, रिसर्च करने के बाद उनको ये सब करना पड़ता है, बिकॉज दे रियलाइज दैट मे बी द इंडियन ऑडियंस इज नॉट गेटिंग स्टिमुलेटेड और इंटरेस्टेड इन ओनली जस्ट द टैलेंट, उनको चाहिए कुछ ड्रामा. तो गलती सिर्फ चैनल वालों की नहीं है, इट्स ऑल्सो व्हाट द ऑडियंसेस आर वांटिंग. इंडियंस मतलब इंडियन शोज की भी कह सकते हैं, उसमें ड्रामा सबको चाहिए होता है, वरना टीआरपी रेटिंग्स गिर जाती है, के ऊपर ज्यादा कम फोकस होता है. एंड आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ जिसके बारे में फैंस यू नो एक्साइटेड हो, या कुछ इन स्टोर जो अभी आप बड़ा लाने वाले हो? मैंने अभी एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, अभी रिलीज होने वाला है. आई डोंट नो द रिलीज डेट एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द नेम ऑफ द सॉन्ग, बट इट्स गॉट एक पंजाबी सॉन्ग है और उसमें एक स्टार डॉटर है, बहुत बड़े स्टार की डॉटर इज फीचरिंग. I can't reveal that also because yeah, we understand. but this is something to look out for because बहुत मजेदार, बहुत ही मस्त गाना है. So yes, please look out for it because गाना absolutely ready for release है, वीडियो भी बना हुआ है. सारे गाने अमेजिंग होते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बात होने ही वाला है. बिल्कुल. And thank you so much for your time, you know, it was lovely talking to you, and all the best for all the upcoming projects, you know. Thank you so much. Stay safe, stay happy, stay healthy, and always have music in your life. Thank you. Bye. Take care.